Dear friends, first of all, let us see the answer of the question which I had given you yesterday. Question was, what is the difference between the following two sentences? As far as meaning is concerned, the first one, Raj goes to school. Here, we should remember that to school without article the. It means only for the purpose of study. That means to school means to study only. But here, Raj goes to the school means here the definite article the is used. In that case, the school means not for the purpose of study, but maybe to meet the principal or any other official work, such as for any certificate or something like that. So, the difference between these two, I hope you have understood it clearly. To school means only for the purpose of study. To the school means not for study but for any other purpose. Let us see something more. See students, I have written one more sentence. Let us see the meaning once more and let us fix the meaning to our mind that if it is without the, then what is the meaning, and if it is with the, then what is the meaning? She goes to temple. Here it means she is going for the purpose of worshipping, praying, that's all. And she goes to the temple means she is not going there for the purpose of worship. She has done it. She doesn't need to worship again, but she has to do some other work there. Maybe because she wants to go with her friend, or she wants to go to do any kind of help to any people, to the poor people, maybe something like that. Here it is very clear, she is going for praying and worshipping, and here the temple means not for worshipping, but maybe for some other work, some other social work or any humanitarian work like that. So let us remember this. Hello students, now let us start a new topic that is called as determiners. What is the meaning of determiners? One who determines is called as determiner. Who has the power to determine? There are some words that have the power, that those words limit the number or the quantity of something in a sentence. So, in blank spaces there can be some words which can be used to give full meaning to the sentence. So out of them today now we are going to see two only, that is some and any. In which sentence we have to use some and in which sentence we have to use any. सम एंड एनी को लेके कई स्टूडेंट्स में ये एक डाउट है कि कहाँ सम का प्रयोग करें, कहाँ एनी का प्रयोग करें. सो लेट अस सी थ्रू सम एग्जांपल्स. हैव यू टेकन पार्ट इन एनी ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन? सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द सेंटेंस? ये सेंटेंस क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है तो क्या यूज़ किया? एनी का यूज़ किया है. लेट अस सी अनदर एग्जांपल. ही हैज़ नॉट मीन्स हैज़न्ट गॉट एनी मनी नाउ. उसके पास कोई पैसा, कोई धन अभी नहीं है उसके पास. हैज़न्ट गॉट एनी, सेंटेंस का नेचर नेगेटिव है, नेगेटिव है तो एनी. सो स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, if it is a question then most probably any. If it is a negative sentence then most probably any. Then let us see, he hasn't got any time so he will not help you. उसके पास समय नहीं है, इस कारण से वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा. डू यू वांट एनी हेल्प फ्रॉम मी? क्या तुम्हें मुझसे कोई हेल्प चाहिए? तो यहाँ पर डू यू वांट और यह क्वेश्चन मार्क, किस कारण से क्वेश्चन है तो यहाँ पर एनी. प्लीज़ गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दीजिए, पीने को पानी दीजिए, यह है इसका मतलब. तो वह पानी की क्वांटिटी है सम, तो ये या तो वो लिमिटिंग द नंबर होगा या लिमिटिंग द क्वांटिटी होगा. तो उसमें देखिए प्लीज़ गिव मी सम वाटर, ये ना क्वेश्चन है ना नेगेटिव है, ये अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस है, इस कारण से इसमें सम का यूज़ किया गया है, इसमें एनी का यूज़ ना करें. शी हैज़ सम लेटर्स टू पोस्ट, उसके पास पोस्ट
करने के लिए, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में डालने के लिए कुछ पत्र है, लेटर्स है, तो उसको सम लेटर्स, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये ना क्वेश्चन है या नेगेटिव है। सो हम इसकी समरी के रूप में आप समझे, सपोज द सेंटेंस इज गिविंग ए क्वेश्चन और इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो मोस्ट प्रोबेबली एनी यूज़ करें। इफ द सेंटेंस इज ए नेगेटिव टाइप सेंटेंस देन एनी यूज़ करें। यानी दो स्थिति में, दोनों कंडीशंस में आप एनी का यूज़ कर सकते हैं। बट इफ इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस तो मोस्टली सम का यूज़ करना चाहिए। इस प्रकार हम सम और एनी में डिफरेंस समझे। स्टूडेंट्स, लेट अस सी another two more determinants. They are, one is much and the other is many. Now we have to find out in which context, under which circumstance, under what condition we have to use much or many. So let us see. Let us see and learn through the examples. The poet Kalidas has written many प्लेस, प्लेस यानी ड्रामास। प्लेस यहाँ पर मतलब है नाटक या ड्रामा जो कालिदास की रचना है। तो यहाँ पर यह देखिए, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। ये इफ़ इट इज़ नंबर देन नंबर के लिए मैनी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो चीज़ है रिक्त स्थान के बाद जो है, वहाँ पर यदि क्वांटिटी है यानी मात्रा है, तो मात्रा के लिए हमें मच का प्रयोग करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे ये लिखा हुआ है, मैनी विथ नंबर्स, यूज मैनी विथ नंबर्स एंड मच विथ क्वांटिटी। अब आप देखिए इसमें सेंटेंस में देखिए, आई हैव मैनी बुक्स। बुक्स काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के साथ मैनी का यूज़ करें, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का यूज़ करें। ये क्वांटिटी में ही बताए जाएंगे। टाइम क्वांटिटी है और बुक्स नंबर है, इसलिए बुक्स को गिन सकते हैं, टाइम को मच के हिसाब से ही गिनती बता पाएंगे। टाइम को गिन के बताना संभव नहीं होता है। अब देखिए, शी हैज़ मैनी चिल्ड्रन। चिल्ड्रन उसके कई बच्चे हैं, तो ये बच्चों की गिनती होती है। इस कारण से ये काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल के पहले मैनी का यूज़ करना है। यानी यहाँ पर मैनी में भी एक लिमिटेशन है, इसलिए हमने सबसे पहले लिखा था डिटर्मिनर्स आर दोस वर्ड्स विच लिमिट आइदर द क्वांटिटी और द नंबर ऑफ ए नाउन और समथिंग, एंड वी हैव रिटन हियर चिल्ड्रन एंड देयरफॉर चिल्ड्रन के पहले मैनी का यूज़ होगा। आई हैव रेड मैनी बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। मैनी बुक्स, बुक्स ये जो रिक्त स्थान है, ये जो ब्लैंक्स है, इसके बाद आने वाले पर डिपेंड रहेगा कि वहाँ पर मैनी आना है कि मच आना है। सपोज इफ इट इज़ नंबर्स देन वी हैव टू यूज़ मैनी, एंड इफ इट इज़ क्वांटिटी देन वी हैव टू यूज़ मच। लेट अस सी, आई हैव मच एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। देयर इज़ मच वाटर इन द रिवर। रिवर में बहुत पानी है, ये कहना है तो वाटर, वाटर की गिनती नहीं हो सकती, इस कारण से इसको हमेशा क्वांटिटी में ही बताना पड़ेगा। मच में एक क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी का लिमिटेशन भी है। और देयर इज़ मच वाटर, इस प्रकार की चीज़ें, वाटर है, मिल्क है, लिक्विड है, और इसके अलावा टाइम है। इस प्रकार की चीज़ें जिसको नहीं गिनी जा सकती उसको हम मच के साथ यूज़ करें। जो गिनती की जाने वाली चीज़ें हैं जिसको काउंटेबल नाउन्स कहते हैं, जैसे प्लेस हैं, चिल्ड्रन हैं, बुक्स है, देन पेन्स है, कॉपीज है, इस प्रकार के नाउन्स के साथ में मैनी का यूज़ करें। मच वाटर, आप ये देखिए, यू मे ईट एज मच एज यू वांट। एज मच एज, जितना चाहो, जितना चाहे उतना खा ले, मतलब उसका भी एक लिमिटेशन होगा, वो एक लिमिट के बाद खा नहीं पाएगा। इसका मतलब है एज मच एज, बीच में, दोनों के बीच में मच का यूज़ करना चाहिए। सो फाइनली लेट अस ऑल्सो रिमेंबर दैट मैनी इज यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स। मैनी को हम ऐसे संख्याओं के साथ यूज़ करें जिसकी गिनती की जा सकती है। और मच इज़ यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स, दैट मीन्स विथ क्वांटिटी, जिसको केवल मात्रा में ही बताई जा सकती है, उसके साथ मच का प्रयोग करें। इस प्रकार
many और much में डिफरेंस समझते हुए सेंटेंसेस में फिल इन द ब्लैंक्स करने का प्रयास करें। धन्यवाद।